Good morning, dear children. Welcome to the class. Today, we are going to start one new chapter of history, that is, a new kings and kingdoms. So, as the name suggests of this chapter, that in this chapter we are going to talk about how during the period of 700 AD to 1750 AD, between this period, the new types of king were emerged, new types of kingdom were emerged, right? So, look at the first thing you should understand what is the difference between the term dynasty, kingdom, and empire. So, dynasty means a group of rulers who belong from same family, right? A family of rulers, you can say, right? Who rule over a country for a long period of time, that is called dynasty. Examples are Mauryan dynasty, Sung dynasty, Pal dynasty, right? So all of you know about the Mauryan dynasty. In Mauryan dynasty, there were many rulers like Chandragupta Maurya, Asoka, Bindusar, right? So these are the ruler who belongs from Maurya dynasty. Okay. Then we are coming to the word kingdom. Kingdom is an area, geographical area which is ruled by a king, right? इसको kingdom बोला जाता है. कोई भी area जिसको king rule करता है, that is called kingdom. So any country which is ruled by a monarch is considered to be a kingdom. What is empire? Empire is something which represent a bigger kingdom. That means एक बहुत बड़ा area जिसको बोल सकते हैं हम, जहां पर कि different types of region हैं, different types of culture हैं, ठीक है? लेकिन उस पूरे region को एक ही ruler rule करता है. That is called empire. So if you compare the kingdom and empire, so empire is a bigger term, that means it is a bigger area. Kingdom is a smaller one. Okay. So for example, you can look at here, some examples are there. British Empire, right? British Empire में कौन कौन सा country आता है? England, Scotland, Wales, right? During the time of आज से 100 years ago, right? At that time, the British Empire were ruling different part. For example, वो इंग्लैंड को भी रूल कर रहे थे, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका. दीज आर द कंट्री where they were ruling. That's why we called it as a British Empire, right? Okay, coming to the next one, the first topic in this chapter we will read about emergence of new dynasties, right? Okay, new dynasties meant, that means कि इस समय between the period of 700 AD to 750 AD, there was many new kingdoms came up, right? There was many new kings, there was new dynasties, ठीक है? कई सारे new dynasties यहाँ पर आए between this period. तो उसके बारे में पढ़ेंगे that how they came into the power, right? So first of all, you should understand that what is Samantas. Who were Samantas? So basically, these Samantas were big landlords or warrior chief. दैट मीन्स जब लड़ाई करने जाते जो मिलिट्री कमांडर होते थे या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, those who have a big amount of land, huge amount of land, these people were called as samantas, right? These samantas were subordinate to king. So look at here, this is king and this is samanta, right? So this samanta is the subordinate to the king. This samanta brings certain gifts to the king, right? Apart from this samanta also provide military support to the king, as well as they also attend the court of king. तो क्या करते थे वो लोग? कई बार राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, किंग को मिलिट्री का सपोर्ट करते थे. अगर कोई लड़ाई होती थी तो ये सामंता उनको, किंग को मिलिट्री प्रोवाइड कराते थे, राइट? दे वर आल्सो अटेंडिंग द मीटिंग्स इन किंग्स कोर्ट, राइट? So because of all these things, do you think that they have a very much power with them? Yes, these Samanta were very much powerful because उनके पास मिलिट्री भी थी और उनके पास पैसे भी थे, right or not? ठीक है? So these Samantas, right? Some of the Samantas with who grow very much powerful, कुछ सामंता जो काफी ज्यादा पावरफुल होते थे, उनको क्या बोला जाता था? महासामंता और महामंडलेश्वरा. दिस इज द नेम, ठीक है? जो काफी ज्यादा पावरफुल सामंत होता था उसका नाम था, दैट मीन्स उसको बोला जाता था महासामंता और महामंडलेश्वरा, राइट? ओके, सो
look at here, there are some example where there are many samantas who became king. कई सारे ऐसे सामंताज थे जो धीरे धीरे काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, और पावरफुल होने के बाद अपना जो किंग था उस किंग को हटा के वो खुद वहां के किंग बन गए. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स आर दंती दुर्ग, कदम्बा एंड हरिसेना. दिस इज द नेम ऑफ किंग, राइट. सो 3 रूलर के बारे में हम देखेंगे, दंती दुर्ग, कदम्बा एंड हरिश्चंद्र, राइट. तो ये तीनों जो है राष्ट्रकूटा, ये डेक्कन वाले रीजन से, दैट मीन साउथ इंडिया के आसपास का रीजन है. दिस इज कदम्बा फ्रॉम कर्नाटका. सॉरी, कदम्बा इट इज प्ले नेम ऑफ प्लेस, राइट. राजा का नाम क्या है? मौर्य सरमन, राइट. ओके. So let me show you first where is the place. Look at here. This is Rashtkut on the map. Rashtrakutas. This is Kadambas, right? And the third one is Gujjar Pratiharaj. Look at here. This is Gujjar Pratiharaj region, right? तो यहाँ पर 3 रूलर हुए जो कि काफी ज्यादा पहले पावरफुल हुआ करते थे. They were Samants. Later on they became king. So the first one was Dantidurg. So Dantidurg was a samant of Chalukyas, right? चालुक्य के जगह पर चालुक्य वहां के किंग हुआ करते थे. दंतीदुर्ग वहां का सामंत हुआ करता था. उसने क्या किया, अपने किंग को ओवरथ्रो कर दिया. काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था ये. लुक एट हियर, दिस इज दंतीदुर्ग. एंड बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम लोअर कास्ट. ठीक है, पहले का ये एक रूल था कि दोज हु वांट टू बिकम अ किंग ही मस्ट बिलोंग फ्रॉम क्षत्रिय क्लान, राइट. क्षत्रिय होना जरूरी हुआ करता था. बट दिस दंतीदुर्ग वाज नॉट अ क्षत्रिय, राइट. सो ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, राइट. हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया. कई सारे ब्राह्मण्स को बुलाए उन्होंने, काफी बड़ा एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, रिचुअल किया, राइट. दिस रिचुअल इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ, राइट. बिकॉज इस यज्ञ में ऐसा माना जाता है कि जो इसको परफॉर्म करते हैं उनका जन्म दोबारा होता है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन वुम्ब. वुम्ब मतलब क्या होता है? गर्भ, जहां पर बच्चे पलते हैं, राइट और नॉट, है ना. 9 मंथ तक जहां पर बच्चे रहते हैं वुम्ब कहा जाता है, उसको गर्भ कहा जाता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिचुअल, दिस दंतीदुर्ग डिक्लेयर हिमसेल्फ दैट नाउ ही बिकम एज द क्षत्रिय. ठीक है. अनदर वन इज द रूलर of Kadamba, Maurya Sarman, right. So he was also Samanta, right. Later on he became king. These 2 rulers, that means Mayur Sarman, Maurya Sarman and Harichandra, both of them Brahman. ठीक है, दोनों ब्राह्मण थे, राइट. और काफी ज्यादा रिसोर्सफुल फैमिली से बिलोंग करते थे. इन्होंने क्या किया, आर्म उठाया, हाथ में वेपन उठाया एंड उन्होंने एक किंगडम एस्टैब्लिश किया, अपना एक नया किंगडम एस्टैब्लिश किया, राइट. सो लुक एट हियर कि हाउ सम सामंतास स्टार्टेड बिकमिंग द रूलर ऑफ न्यू किंगडम्स. ओके, नाउ सो हियर यू कैन सी हियर, रीड इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई ऑलरेडी शोड यू द रीजन वेयर दे ग्रो. ठीक है, कहाँ पर कौन कौन सा रीजन है ये आपको मैंने दिखा दिया. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, administration in the kingdom. So all of you know that to administer a kingdom किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग, यस और नो. सो द किंग ऑलवेज गिव देमसेल्फ अ हाई साउंडिंग टाइटल्स. किंग क्या करते थे, अपने नाम के सामने एक बड़ा बड़ा टाइटल लगाते थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महाराजाधिराज, त्रिभुवना चक्रवर्ती, राइट. दीज आर द टाइटल्स दे यूज इन फ्रंट ऑफ देयर नेम. महाराजा अधिराज का मतलब क्या होता है? ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, दैट मीन्स किंग ऑफ किंग्स, राइट. त्रिभुवना चक्रवर्ती का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड. ऑल ऑफ यू नो दैट इन हिंदुइज्म इट इज कंसिडर दैट कि 3 वर्ल्ड है, एक हमारा स्वर्ग है, एक हमारा धरती लोक है और नीचे एक पाताल लोक है. तो इस तरह के टाइटल्स यूज करते थे, राइट. बट इस टाइटल को यूज करने से क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा? नो. ठीक है, टू एडमिनिस्टर द कंट्री दे नीड सर्टेन सपोर्ट, राइट. तो ये जो राजा थे, राइट, राजा क्या करते थे, अपना पावर
कई सारे लोगों के साथ शेयर करते थे, राजा का मदद कई सारे लोग करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल सामंताज, राइट, एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, इन लोगों के साथ मिलके किंग क्या करते थे, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, राइट। नॉट ओनली दिस, टू एडमिनिस्टर किंग ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स, ठीक है, लोगों से क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिशियन से, क्राफ्टमैन, राइट, traders, these are the different types of people who were paying taxes, right? Now the question is why king collect tax? So all of you know that to the king collect tax for administration, simple, ठीक है। whenever they wage war, आप लोगों को पता है कि जब भी war लड़ाई होती है, they need money, yes or no? So from where this money comes? This money comes from people, right? Finance their establishment, for example constructing massive structure, forts, temple, palace, irrigation, right, irrigation facilities. All these things are done with the help of money, and this money comes from tax, and this tax is levied on the people of kingdom. Okay, now so during this time there are many examples where you will find that kings were collecting different types of tax. For example, it is the example of Chola Empire. In Chola inscription, it is written over there that there was 400 different types of taxes were collected by the king. ठीक है, तो चोला एम्पायर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, राइट। यहाँ पर के जो किंग होते थे, they were collecting more than 400 types of taxes from different types of people, right, ठीक है। उसमें सबसे जो पॉपुलर टैक्स था दैट वाज कॉल्ड एज वेटी, ठीक है। वेटी एक ऐसा टैक्स था जो कि लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। दैट मींस दैट फॉर एग्जांपल कि किंग यहाँ है, किंग का पैलेस है, और इस किंगडम में कोई एक क्राफ्टमैन रहता है या फिर कोई पीजेंट रहता है, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, दिस पीजेंट। सो किंग क्या करते थे, इनको बोलते थे कि मंथ में आपको 2 डेज मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा, मेरे फार्मलैंड पे काम करना पड़ेगा। टेक एन एग्जांपल कि कोई क्राफ्टमैन होता था, कारपेंटर होता था, तो किंग क्या बोलते थे, यू हैव टू वर्क फॉर किंग फॉर 2 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, राइट। तो 2 दिन के लिए काम किया उन्होंने मंथ में, दैट इज इक्विवेलेंट टू टैक्स। इस तरह के टैक्स को क्या बोला जाता था, वेटी, राइट। उसके अलावा कडामाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ हाउस टैक्स, ठीक है। देन फैमिली प्रॉपर्टी पे किसी तरह का टैक्स लगाना, तो ऑल तरह इस तरह के टैक्सेस आप देख सकते हो। इफ यू कंपेयर द टैक्सेस फ्रॉम अर्लियर टाइम, कैन यू मैच सर्टेन फ्रॉम प्रेजेंट टाइम? क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी इस तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं? क्या वेल्थ टैक्स कलेक्ट किया जाता है? क्या प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है? यस, टुडे आल्सो वी आर कलेक्टिंग some wealth tax, some property tax, right? Okay, now coming to the third topic of this chapter, that is prasasti and land grants, right? So what is prasasti? Remember your class 7th, right, and 6th, sorry, in class 6th we already talked about prasasti. Prasasti, the meaning of prasasti is in praise of, in praise of, in praise of का मतलब क्या होता है, तारीफ करना किसी के, राइट और नॉट, या फिर उसके बारे में लिखना। सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर मेनी ब्राह्मण्स, यू कैन लुक एट हियर, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स वर राइटिंग, यू कैन से ऑन दिस कॉपर प्लेट रिगार्डिंग द किंग। किंग के बारे में ये लोग क्या करते थे, कॉपर प्लेट पे लिखते थे, उनकी तारीफ किया करते थे प्रशस्ति के ऊपर, राइट। तो आज हमारे पास कई सारी ऐसी प्रशस्ति हैं दैट इज टॉकिंग अबाउट द king, right? So look at here, this is the example of one prasasti, you can look at here this, right? So what is prasasti? It is a Sanskrit poem written by Brahmins in praise of kings, ठीक है। this content details, it may not be literally true, that means what, कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब कुछ सच ही होता हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तारीफ में लिखते थे। तो डू यू थिंक दैट एनी ब्राह्मण्स विल क्रिटिसाइज किंग? नो, राइट और नॉट। अगर कुछ गलत भी करते होंगे कोई किंग, तो दे ब्राह्मण्स वर नॉट राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट द किंग, राइट। सो व्हाट इज रिटन इन दिस, इसमें क्या लिखा हुआ होता है? इसमें मोस्टली ये चीजें लिखी होती थी
कि किस तरह से रूलर्स ने अच्छे अच्छे काम किए। फॉर एग्जाम्पल क्या उन्होंने कौन कौन सा लड़ाइयां जीती, किस तरह से वो फियरलेस है, हाउ ही इज ब्रेव, राइट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर रिटन इन प्रशस्ति, बट देयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, कालहाना नाम का एक ब्राह्मण था जिन्होंने प्रशस्ति लिखा है। ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द रूलर ऑफ कश्मीर, राइट। ठीक है, वो काफी ज्यादा उनके पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। सो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बाकी प्रशस्ति से अलग है, राइट। So, what do you think if some Brahmins are writing something in praise of king? Do you think that king will give something to the Brahmins? Yes, king often rewarded Brahmins by the grant of land. तो किंग क्या करते थे, कुछ लैंड दे दिया करते थे किनको, ब्राह्मण्स को। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता था। यू कैन लुक एट हियर, जब वो ग्रांट करते थे लैंड को तो इस कॉपर प्लेट पे वो लिख देते थे, राइट, और उनको ये कॉपर प्लेट दे दिया जाता था, राइट। ओके, look at here. This is a set of copper plate recording the grant of land made by the ruler in 9th century. ठीक है, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, कुछ तमिल में लिखा हुआ है, कुछ पर्शियन में लिखा हुआ है, राइट और नॉट। ठीक है, और इन सभी को एक साथ टाई किया गया विद द हेल्प ऑफ वन रिंग, राइट। तो इस तरह से रखा जाता था प्रिजर्व करके, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा लैंड किसको ग्रांट किया गया, राइट। यहाँ पर एक सील भी है, लुक एट हियर, दिस इज सील। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।